आज जो सेमीकंडक्टर की कॉन्फ्रेंस रही उसमें एक इनिशिएटिव इंडस्ट्री ने लिया, फंड इंडस्ट्री ने, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत चाहिए इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट, यू नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सो वी हेल्प फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड इंडिया डीप टेक अलायंस इन्वेस्टमेंट। उसमें $1 बिलियन एक हफ्ते के अंदर हमारे 8 फंड्स ने कमिट कर दिए। तो ये तो पहला फेज है। एक हफ्ते में गवर्नमेंट इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन करने वाली है $1 बिलियन। सो एक हफ्ते में $2 बिलियन का काम हुआ है। तो दैट इज द स्पीड एट विच वी आर मूविंग, एंड आई थिंक फ्रॉम वर्ल्ड ओवर, यूएस एक्सेट्रा, इंडिया, सब फंड हमने जमा किए और एक इंडिया डीप टेक अलायंस इन्वेस्टमेंट अलायंस बोलते हैं उसको, तो एक फॉर्म हो गया। तो ये बहुत बड़ी नया ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है कि जिसमें सब फंड साथ में आके इंडिया के लिए कमिट कर रहे हैं। यूएसए से, इंडिया से, अभी दूसरे कंट्री से भी आएंगे, लेकिन अभी तो एक हफ्ते में जो हो गया, क्योंकि इन शॉर्ट टाइम $1 बिलियन बहुत बड़ी चीज। 8-8.5 करोड़, 2 करोड़, आज तो 88 का भाव हो गया। तो इंडिया में पोटेंशियल बहुत है, टैलेंट भी बहुत है, लेकिन वी हैव टू क्रिएट मोर इंस्टीट्यूशन विच कैन नर्चर द टैलेंट। देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट, देयर इज डर्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच कैन नर्चर द टैलेंट and take them to the next level. Of course, there are many, but I think there are not enough institutions who really breed the culture of innovation, breed the culture of creativity. I think that is where we should be focusing more. Of course, there are IITs and many other ones, so it's not that it's not there, but I think the number is not enough. So once we begin to do that, money is enough. As I said, within 1 week, it's a project by itself to get a commitment of $1 billion. So that is so interest बहुत है इंडिया के लिए। सर $1 बिलियन इंडस्ट्री की तरफ से आपका अलायंस इकट्ठा करेगा, हाँ। $1 बिलियन सरकार डालेगी, हाँ, कम से कम। और सर ये कहाँ टोटल गवर्नमेंट का बजट है 1 लाख करोड़, करीब 11-12 बिलियन का। तो जब जैसे इंडस्ट्री ज्यादा डालते जाएगी, गवर्नमेंट भी 1-1 बिलियन डालती जाएगी। तो ये कहाँ पे, किस सेक्टर्स पे खर्च होगा सर? ये डीप टेक बोलते हैं जिसको। एआई तो ठीक है, वो प्रेजेंट है, लेकिन बहुत सारे दूसरे, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, बायोअकॉस्टिक, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर कमिंग अप। द मेनी डीप टेक, मतलब एक, it is not normal services of technology, but this is a deeper thing. So what we have announced is a India Deep Tech Alliance, which is a collaboration and a consortium of many venture capital firms, global and Indian firms, coming together to work on developing the deep tech ecosystem in India. So this is a way for these financial investors to coordinate how they engage in identifying opportunities, sharing technical diligence information between the participants, and also co-investing in developing these startups. Now, most importantly, these firms that are part of this alliance will use this alliance to engage with the government or government of India in the context of the RDI scheme, and how the government can actually support these startups, and how the government can support these investment funds as well. So that's the objective of the alliance, and that's what we've announced. And this fund, you have created $1 billion fund within a week? No. We have not created it within a week. We have spent a lot of time thinking about it. The RDI scheme that the government has announced has been announced for several months, and Honorable Finance Minister announced it as part of the budget, and Prime Minister Modi has talked about it. So it's been in the works, and you also know Honorable Minister Ashwini Vaishnaw talked about ISM, the semiconductor mission, and evolution of the semiconductor mission itself. And Department of Science and Technology has announced the RDI scheme in conjunction with the ANRF
program. So this has been in the works, and the industry has been in conversations with the government, and so we've been working on this for quite some time. And government will also put the same fund you are... Correct. The government is also looking to investing in startups in conjunction with the VCs into those startups, and the government is also looking to providing low-cost, long-term, interest-free or low-interest loans to these startups, and the government is also looking to capitalizing these second-level fund managers, which are the VCs, with capital to invest also. And which sectors you will promote? Which sector? I mean, the minister was saying some space, semiconductor. Yeah. So the government, the objective of the investors is to invest in deep tech sectors. So semiconductors and advanced manufacturing and hardware and artificial intelligence and digital biology and robotics and space and defense technologies and quantum technologies and all of that. So the government likes to call it as the strategic sunrise sectors, or the sectors that are more foundational with intellectual property and key technology capabilities, and those are the areas that we expect to invest in. Sir, this is the first time such fund has been created for startup. Yeah. Well, I mean, you shouldn't think of it as you shouldn't think of it as a new fund that's getting created. It's coming together of many funds to work in a platform as an alliance to work jointly. So we're not pooling capital to create a new fund. We're creating, each of us is coming together and focused investments and investment activity in the deep tech area that we're agreeing to do jointly. That's the way to think about it. And sir, what message the Semicon India is sending to the world? That the opportunity is big, India's capability is large, the market is large, and there are enough collaboration capabilities between global companies and Indian startups. Global U.S. major technology companies have advanced technology. When you look at, if anybody is working on artificial intelligence in software or data centers, they are dependent on the large companies like NVIDIA or Microsoft or Google. So there are clearly technology capabilities that some of the major U.S. companies have that, when made available to some early stage startups, it creates opportunities for us to create new products and new technologies. And it also fosters collaboration between these startups and these large companies. So that's really the idea. आज जो सारी चिप्स आती हैं, चाहे वो पासपोर्ट में है या आधार कार्ड में है या पेमेंट कार्ड में है या पॉइंट ऑफ सेल में है, वो बाहर से आती हैं. तो उनमें सिक्योरिटी हैक करना या डेटा बाहर चला जाए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो CDAC के साथ वी आर मेकिंग नाउ, दे आर डेवलपिंग अ न्यू स्टैंडर्ड एंड L&T will make the chip. So all transactions, whether it is passport, Aadhaar, payment, point of sale, वो सब सिक्योर हो जाएगा विद इंडियन चिप. ये 1-1.5 साल में निकाल देंगे. आपकी ये चिप 1-1.5 साल में आ जाएगी? हाँ जी. और सर कहाँ लगेगी ये? पासपोर्ट में लगेगी, सारे क्रेडिट कार्ड में लगेगी, सारे आधार कार्ड अब इलेक्ट्रॉनिक होने वाले हैं वहाँ लगेगी, सब पेमेंट गेटवे में लगेगी. जैसे आप कभी जाते हो ये पेमेंट के लिए कार्ड यूज़ करते हो तो वो चिप बाहर चली जाती है. तो सर जो अभी मौजूदा पासपोर्ट है, क्रेडिट कार्ड है, तो जब ये आपकी चिप आएगी तो क्या वो रिप्लेस होंगी सारी, या जो है न्यू पासपोर्ट या न्यू क्रेडिट कार्ड? ऑलरेडी बन रहे हैं. गवर्नमेंट का प्लान ऑलरेडी है कि नए पासपोर्ट बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक चिप के साथ. अच्छा. तो वो जैसे ही आएगी वो शुरू हो जाएंगे. ठीक. और सर आज जो है प्राइम मिनिस्टर को पहला चिप प्रेजेंट किया गया. हाँ जी. कितना ये इंडिया के लिए कितना बड़ा मूवमेंट है जो पहली चिप मैन्युफैक्चर हुई है? को हर एक चीज़ बड़ा मोमेंट होती है. शुरू में जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जब पहला कदम लेता है तो सब पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है. अब वो उसके बाद भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, तो वो याद नहीं रहता कि वो पहला कदम इतना इम्पोर्टेंट था. बट पहला कदम इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट. तो दैट इज़ हाउ इट इज़. और सर जो प्राइम मिनिस्टर की आपने स्पीच सुनी कि बनाएंगे हम और दुनिया को चिप बेचेंगे,
उनकी स्पीच में क्या आपको अच्छा लगा और इंडिया किस तरह से उसको अचीव करने जा रहा है? देखो ये चिप की इंडस्ट्री कुछ अजीब है। मैंने कल भी बोला था वो ICA वाले पैनल में लॉन्च में कि जो चिप बनती है ये $1-2 की बिकती है, कभी कभी बहुत बड़ी बहुत चीज़ बढ़िया हो तो $100 की भी बिक जाती है, मगर ये छोटी छोटी चिप होती हैं। तो गाड़ी में $2000 की जो चिप लगती है वो 1000 चिप लगती हैं, तो $2 की, $1 की। तो अगर वो अच्छी नहीं है तो गाड़ी वाला कहता है मैं तो बाहर वाली चिप यूज़ करूँगा, क्योंकि उसकी $10,000 की गाड़ी नहीं बिकेगी, क्योंकि उसने $1 सस्ती वाली कोई चीज़ लगा दी। तो इसका मतलब चिप बनाने वाले को ऐसी बनानी पड़ेगी कि वो दुनिया में अच्छी हो। अगर एक बारी वो बन गई जो दुनिया में अच्छी हो तो बाहर भी बेच सकते हो, क्यों सिर्फ इंडिया में बेचोगे? तो टोयोटा भी खरीदेगा, होंडा भी खरीदेगा। तो अगर वो थिंकिंग ये चिप इंडस्ट्री में या तो बिकेगी नहीं या फिर बिकेगी तो सब जगह बिक सकती है। अब वो दूसरी बात है कि लोगों को बेचना आता है कि नहीं, वो अलग काम है, मगर टेक्निकली वो प्रोडक्ट बिकेगा बाहर। और सर हम कब तक हम देख सकते हैं, देखिए पहली चिप आ गई, कब तक हम देख सकते हैं जो दुनिया में जो हब है इसके सेमीकंडक्टर के, इंडिया को कब एज ए सेमीकंडक्टर हब हम देख सकते हैं? तमाम MOU साइन हुए, आपने देखा कितना सेमीकंडक्टर इंडिया इसमें इम्पोर्टेंस है। 10 साल लगेंगे कम से कम। 10 साल में हम सेमीकंडक्टर हब बन सकते हैं। मतलब हब का मतलब अपने अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। पहला ये स्टेप, फिर दूसरा होगा दुनिया देखती है कि हाँ हम यहाँ पे करेंगे। अब जैसे US में करते हैं, ताइवान में करते हैं, चाइना में करते हैं, चाइना में चाइना वाले करते हैं, ताइवान में ताइवान वाले करते हैं, जापान में जापान वाले करते हैं, इसी तरह हम भी करने लगेंगे। जापान में जापानी कंपनी होती हैं ज़्यादातर, ये तो नहीं है कि अमेरिकन जाके वहाँ सेटल कर रहे हैं। तो वहाँ से दुनिया में जाएगा, यहाँ से भी दुनिया में जाएगा, इन दैट वे। मगर सेमीकंडक्टर थोड़ा अजीब, एक और तरीके से अजीब चीज़ है। कम से कम 50,000 चिप होती हैं, तो एक चिप बन गई उससे एक्सपोर्ट बंद नहीं होगा, इंपोर्ट बंद नहीं होगा। और 50,000 चिप बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो इंपोर्ट तो आएगा ही। सारी दुनिया एक्सपोर्ट करेगी, सारी दुनिया इंपोर्ट करेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हाई वैल्यू चीज़ें होंगी वो हम अपने आप बनाने लगेंगे, मगर सब चीज़ें बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो सर आखिरी सवाल ये कि दुनिया इस सेमीकंडक्टर इंडिया से जो आज ये इवेंट है, तमाम दुनिया भर के लीडर्स यहाँ पे इंडस्ट्री के मौजूद हैं, यहाँ से क्या मैसेज दुनिया के लिए देखते हैं? मैसेज तो कुछ नहीं है, मतलब मैसेज यही है कि इंडिया कोशिश कर रहा है, इनके ऊपर ध्यान दो, आ जाएंगे। यहाँ मैं देख रहा था तो बहुत सारे यूथ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, हाँ सबको। उनके लिए क्या है जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है उनके लिए? जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत आएगी, क्योंकि ये दिस इज़ 500,000 5 लाख 1 मिलियन ऐसे बन जाएगा ये इकॉनमी। अभी जो अब वो दूसरी बात है कि 20% जो वर्कफोर्स है जो अभी दुनिया की चिप बनाती है वो अब अपनी बनाने लगेंगे। तो हो सकता है कि इंक्रीमेंटल जॉब बहुत ज़्यादा ना हो, मगर वो दूसरी एरिया में जॉब आएगी। जैसे मिनिस्टर जी बोल रहे थे ना कि ये चिप अगर बनने लगी तो फ़ोन भी बनने लगेगा, राउटर भी बनने लगेगा, वॉशिंग मशीन भी बनने लगेगी। तो इसकी वजह से सारी और चीज़ें बनने लगती हैं। ये फाउंडेशन है, उसके ऊपर सब बन सकता है।